السلام علیکم ناظرین، KBN نیوز کی خاص خبروں میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ میں ہوں نیہا خان۔ نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم تفصیلات پر۔ ریاست تلنگانہ موسی ندی میں نئی جان ڈالنے کا پروجیکٹ اراضیت کے حصول کے لیے تازہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ تلنگانہ حکومت کے باوقار موسی ندی کو خوبصورت بنانے اور اس میں نئی جان ڈالنے کے پروجیکٹ کے سلسلے میں پہلا بڑا قدم اٹھاتے ہوئے موسی ریور ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے تحت اراضیت کے حصول کا عمل شروع کر دیا گیا۔ اس سلسلے میں تلنگانہ حکومت نے تازہ نوٹیفیکیشن جاری کیا، جس کے تحت ضلع رنگا ریڈی کے گولکنڈہ اور گنڈی پیٹ منڈلوں میں تقریباً 50 ایکڑ سے زائد اراضیت حاصل کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ حکام نے دیہات وار اور سروے نمبروں کے ساتھ اراضیت کی مکمل فہرست جاری کر دی ہے۔ کیا آپ وزن بڑھنے سے پریشان ہیں؟ کیا ڈائٹنگ اور ایکسرسائز کے باوجود فرق نظر نہیں آ رہا؟ اب فکر کی کوئی بات نہیں، کیونکہ فاطمہ شیرازی لے کر آئے ہیں ہربل ویٹ مینجمنٹ سولوشن۔ قدرتی جڑی بوٹیوں سے تیار کردہ سلم ایج باڈی رائٹ اور ٹمی ٹون، جو آپ کے جسم کے میٹابولزم کو بہتر بناتے ہیں، اضافی چربی کم کرنے میں مدد دیتے ہیں اور پیٹ کی ضدی چربی کو آہستہ آہستہ کم کرتے ہیں۔ یہ کوئی جادو نہیں، یہ ایک قدرتی اور محفوظ پروسیس ہے جو آپ کے جسم کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، بغیر سخت ڈائٹنگ، بغیر سائیڈ ایفیکٹس، صرف قدرتی طریقے سے وزن کم کریں۔ آج ہی فاطمہ شیرازی ویٹ مینجمنٹ کو اپنائیں اور خود کو پر اعتماد، ہلکا اور صحت مند محسوس کریں۔ فاطمہ شیرازی، کیونکہ ویٹ لاس ایک مسئلہ نہیں، ایک پروسیس ہے۔ ریاست بھر میں 116 میونسپلٹیز اور 7 کارپوریشنز میں پولنگ ہوئی۔ پولنگ صبح 7 بجے شروع ہوئی اور ابتدائی جوش و خروش کے ساتھ گزرے، تاہم بعد میں گرمی اور دیگر وجوہات کی بنا پر پولنگ کی رفتار کچھ سست ہو گئی تھی۔ صبح 11 بجے تک 28.48% پولنگ ریکارڈ کی گئی تھی اور ریاستی انتخابی کمیشن کے تازہ اعداد و شمار کے مطابق دوپہر 1 بجے تک ریاست بھر میں اوسطاً 48.54% ووٹنگ ہوئی۔ صبح سست آغاز کے بعد وقت کے ساتھ ووٹرز کی بڑی تعداد پولنگ سٹیشنز پر پہنچنا شروع ہو گئی تھی، جس سے پولنگ فیصد میں اضافہ دیکھا گیا تھا۔ میونسپلٹیز اور کارپوریشن کے اعتبار سے پولنگ کی صورتحال کچھ یوں رہی۔ میونسپلٹیز میں 51.66%، جبکہ کارپوریشن میں 40.96% ووٹنگ ہوئی۔ میونسپلٹیز میں ووٹرز کی دلچسپی زیادہ رہی، جبکہ کارپوریشن میں پولنگ کا تناسب کم تھا لیکن بتدریج بڑھتا گیا۔ ناگر کرنول ضلع کی 3 میونسپلٹیز کولہاپور، کلوکوٹی، ناگر کرنول میں 1 بجے تک سب سے زیادہ 51.99% ووٹنگ ریکارڈ کی گئی تھی۔ اس پولنگ کے دوران وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کوڑنگل میں اور مرکزی وزیر بنڈی سنجے نے کریم نگر میں اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا۔ ریاست کی 116 میونسپلٹیز اور 7 میونسپل کارپوریشن میں پولنگ شام 5 بجے تک جاری رہی۔ چند چھوٹی موٹی شکایات جیسے شناختی کارڈز کی تبدیلی کے واقعات کے علاوہ پولنگ پرسکون طور پر جاری رہی۔ ان میونسپل انتخابات میں کل 52,17,413 ووٹرز نے اپنے ووٹ کا حق استعمال کیا۔ تلنگانہ کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے کوڑنگل کے ضلع پریشد ہائی اسکول میں قائم پولنگ بوتھ پر پہنچ کر اپنے حق رائے دہی استعمال کیا۔ اس موقع پر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے اور پولنگ سٹیشن کے اطراف پولیس کی بھاری نفری تعینات رہی۔ وزیر اعلیٰ صبح کے اوقات میں پولنگ سٹیشن پہنچے، جہاں انہوں نے قطار میں کھڑے ہو کر اپنی باری کا انتظار کیا اور بعد ازاں ووٹ ڈال کر جمہوری عمل میں حصہ لیا۔ میڈیا سے مختصر بات چیت کرتے ہوئے ریونت ریڈی نے عوام سے اپیل کی کہ وہ بڑی تعداد میں گھروں سے نکل کر اپنے ووٹ کا حق استعمال کریں اور جمہوریت کو مضبوط بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ ووٹ ہر شہری کا قیمتی حق ہے اور ملک و ریاست کی ترقی کے لیے ہر فرد کی شرکت ضروری۔ کوڑنگل سمیت مختلف علاقوں میں پولنگ کا عمل پرامن طور پر جاری رہا اور عوام میں جوش و خروش دیکھا گیا۔ انتخابی عمل کو شفاف اور منظم طریقے سے مکمل کرنے کے لیے انتظامیہ کی جانب سے تمام ضروری اقدامات کیے گئے تھے۔ تلنگانہ کے کریم نگر میونسپل کارپوریشن کے انتخابات کے ایک پولنگ مرکز پر کشیدگی پیدا ہو گئی۔ بتایا گیا ہے کہ کانگریس کارکنوں کی مبینہ بے ضابطگیوں کو روکنے والے BRS لیڈر کرا تروپتی کو پولیس نے گرفتار کر لیا۔ اس گرفتاری کے سابق وزیر و MLA گنگولا کملاکر نے روکنے کی کوشش کرتے ہوئے انہیں پولیس گاڑی سے باہر نکالا اور پولیس کے رویے پر شدید برہمی کا اظہار کیا۔ اس واقعے سے انتخابی پرامن ماحول متاثر ہوا۔ Police go back! Police go back!
रियासत तेलंगाना के नायब वज़ीर आला मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने म्यूनिसिपल इंतखाबात के हिस्से के तौर पर वार्ड नंबर 6 पोलिंग स्टेशन नंबर 12 प्रभुत्व बॉयज हाई स्कूल कोडंगल टाउन में अपने हक़ रायदही का इस्तेमाल किया। बादजा इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तमाम को अपने हक़ रायदही इस्तेमाल करने की अपील की। इस मौके पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे और पोलिंग स्टेशन के अतराफ पुलिस की भारी नफरी भी तैनात रही। सुबह के औकात में पोलिंग स्टेशन पहुंचे, जहां उन्होंने कतार में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार किया और बादजा वोट डालकर जमहूरी अमल में हिस्सा लिया। बोराबंडा और रहमत नगर की मुतअद्दिद कॉलोनियों में रात के वक्त पानी की फराहमी से अवाम को दरपेश मसाइल के हल के लिए 2.5 करोड़ रुपए की लागत से फेडरमैन पाइपलाइन की तामीर का काम शुरू किया जा रहा है। इस तनाजुर में SPR हिल्स में तामीर की जा रही पाइपलाइन की तामीर के काम का मुआयना किया गया। काम की पेशरफ्त के बारे में पूछने के बाद MD ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि वो पाइपलाइन की तामीर के काम को तेज करें और उसे उगादी के जरिए दस्तयाब कराएं। अगर जरूरी हो तो उन्होंने तजवीज दी कि कारकुनों की तादाद में इजाफा किया जाए और मजीद गैंग फराहम किए जाएं। इस मौके पर बात करते हुए MD अशोक रेड्डी ने कहा कि SPR हिल्स इलाके में पानी जखीरा करने की गुंजाइश न होने की वजह से बाज इलाकों में 3 दिन में एक बार पानी की फराहमी में लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा कुछ बस्तियों को रात के वक्त मीठे पानी की फराहमी में दबाव जैसे मसाइल का भी सामना। गुज़िश्ता साल हुकूमत ने तकरीबन 30 लाख रुपए की लागत से 3 मिलियन लीटर के ज़खायर की तामीर मुकम्मल की। बोराबंडा और रहमत नगर डिवीजन में 52 बस्तियों और कई कॉलोनियों के पानी के मसले को हल करने के लिए 1.5 साल के रिकॉर्ड वक्त में मुकम्मल होने वाले इस आबी ज़खायर की तामीर का इफ्तिताह गुज़िश्ता साल मई में रियासती ट्रांसपोर्ट और BC बहबूद के वजीर और हैदराबाद के इंचार्ज वजीर पूनम प्रभाकर ने किया था। सक्सेस ग्रुप ऑफ स्कूल्स में खास तौर पर लड़कियों की तालीम और एम्पावरमेंट पर ध्यान दिया जाता है। एडमिशन्स अब शहर की मुख्तलिफ ब्रांचेस में ओपन है और साथ ही सिर्फ लड़कियों के लिए हमारा एक्सक्लूसिव स्कूल टोली चौकी और पुरानी हवेली में भी अवेलेबल है। पहले 100 तलबा को बिल्कुल फ्री एडमिशन दिया जाएगा। एडमिशन की आखिरी तारीख 28 फरवरी है। सीट्स लिमिटेड है, इसलिए देर ना करे और आज ही एडमिशन लीजिए। तेलंगाना के नागर कर्नूल बल्दिया के 15वें वार्ड में मुबैना तौर पर जाली वोट डलवाने की कोशिश का मामला सामने आया, जहां BRS कारकुनों ने कांग्रेस से वाबस्ता चंद अफराद को रंगे हाथों पकड़े जाने का दावा किया। इत्तलात के मुताबिक वोटर लिस्ट में उम्र 40 साल दर्ज होने के बावजूद 14 साल लड़की से वोट डलवाने की मनसूबाबंदी की जा रही थी। BRS के मुकामी कायदीन और कारकुनों ने इस कोशिश को नाकाम बनाते हुए मुतल्लिका हुकाम और पुलिस की तवज्जो इस जानिब मबजूल कराई। इस दौरान BRS और कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान तसादुम का वाकया पेश आया, जिसके बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई। क्या तमाशे कर रही है? MLA चिंता प्रभाकर ने म्यूनिसिपल इंतखाबात के दौरान अपने वोट का हक इस्तेमाल किया। MLA चिंता प्रभाकर ने संगारेड्डी हलके के सदाशिवपेट कस्बे में अपने हक रायदही का इस्तेमाल किया। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि जमहूरियत में वोट सबसे अहम हथियार और हर वोटर से कहा कि वो अपना हक रायदही इस्तेमाल करे। उन्होंने यकीन जाहिर किया कि सदाशिवपेट में BRS का झंडा लहराएगा। उन्होंने लोगों को मशवरा दिया कि वो बल्दियाती इंतखाबात में बेदारी के साथ वोट दें और ऐसे लीडरों को मुंतखब करें जो तरक्की चाहते हैं। आंध्र प्रदेश के मुत्तहिदा जिले चित्तौर में बर्ड फ्लू का कहर, हजारों मुर्गियों की मौत से पोल्ट्री सनत में खलबली। आंध्र प्रदेश के मुत्तहिदा जिले चित्तौर में बर्ड फ्लू ने पोल्ट्री की सनत को हिलाकर रख दिया है। सदम मंडल से शुरू होने वाली इस वबा की शिद्दत अब कारोवेटी नगर मंडल तक फैल गई है, जिसने पोल्ट्री फार्म मालिकीन और आवाम को शदीद तशवीश में मुब्तला कर दिया। RKV पेट और इंदिरा कॉलोनी के पोल्ट्री फार्म्स में अचानक एक ही दिन में 1000 से ज्यादा मुर्गियां हलाक हो गयी।
आंध्र प्रदेश हुकूमत रियासत में 18 साल से कम उम्र अफराद के सोशल मीडिया इस्तेमाल पर पाबंदी आयद करने से मुतल्लिक कानून बनाने के इम्कान का जायजा ले रही। ये बात गवर्नर अब्दुल नजीर ने बजट इजलास के दौरान अपने खिताब में कही। उन्होंने बताया कि इत्तेहादी हुकूमत रियासत के GSDP को 2025-26 तक 17,62,000 करोड़ रुपए तक पहुँचाने और फीकस आमदनी को 2,95,000 रुपए तक बढ़ाने का निशाना रखती है, जबकि सनती तरक्की के लिए वन फैमिली वन एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम पर काम जारी है। गवर्नर के मुताबिक अजला की तादाद 28 तक बढ़ाने, अराजी रिकॉर्ड की डिजिटलाइजेशन, लैंड टाइटलिंग एक्ट की मनसूखी और स्वच्छ आंध्रा प्रोग्राम जैसे इक़दाम भी किए गए हैं। हिंदुस्तान की तरक्की में मसनवी ज़हानत AI एक मरकजी सुतून बनकर उभर रहा, जो न सिर्फ गवर्नेंस और अवामी खिदमात को बेहतर बना रही बल्कि बड़े पैमाने पर शहरियों के मसाइल का हल भी फराहम कर रहा। इंसानी तरक्की की तारीख में बिजली, कंप्यूटर, इंटरनेट और मोबाइल फोन्स ने जिस तरह इनकलाब बर्पा किया है, अब AI इसी तसलसल को आगे बढ़ाते हुए ज़राअत, सेहत, तालीम और माहौलियात जैसे शोबों में इंसानों के साथ मिलकर काम कर रहा। इस विजन को तक़वियत देने के लिए 20 फरवरी 2026 तक नई दिल्ली के भारत मंडपम में इंडिया AI इम्पैक्ट समिट मुनक़्क़िद किया जा रहा। ये ग्लोबल साउथ में मुनक़्क़िद होने वाला पहला आलमी AI समिट है, जिसमें 15 से 20 सरबराहाने मुमलिकत, 50 से ज़ायद बैनुल अक़वामी बुज़रा और 100 से ज़्यादा आलमी CEOs शिरकत कर रहे। इस समिट का मकसद AI की ताकत को जामे तरक्की और पायदार मुस्तक़बिल के लिए इस्तेमाल करना है। हिंदुस्तान की मुकम्मल तवज्जो AI की अमली तैनाती पर है, ताकि ये आम शहरी की जिंदगी को आसान बना सके। किसान ई मित्रा और इन नेशनल पीस सर्वेलेंस सिस्टम जैसे प्लेटफॉर्म्स के जरिए किसानों को मौसम की पेशगोई और फसलों के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिल रही। AI के जरिए बीमारियों की जल्द तशख़ीस और टेली मेडिसिन की सहूलियात देही इलाकों तक पहुँचाई जा रही। मुसलसल 2 रोज तक बढ़ने के बाद सोने की कीमतों में हल्की कमी देखी गई है। मार्केट रिपोर्ट के मुताबिक 24 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत में 270 रुपए की कमी हुई और ये 1,58,510 रुपए पर पहुंच गई। इसी दौरान 22 कैरेट के 10 ग्राम सोने की कीमत में 250 रुपए की कमी दर्ज की गई और ये 1,45,300 रुपए पर फरोख्त हो रहा। दूसरी जानिब चांदी की कीमत मुस्तकम रही और 1 किलो चांदी की कीमत 2,90,000 रुपए पर बरकरार है। माहिरीन का कहना है कि आलमी मार्केट में सोने के नरखों में हल्की कमी की वजह से मुकामी सतह पर भी कीमतों में मामूली गिरावट देखने को मिली है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चुंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल। वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారెంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।